So we'll continue with the theorems of Boolean algebra, right? This is the innovation law, sorry, involution law. That is x is equal to x double complement. What it means that if suppose you are having any variable and if we complement it twice, it results in the same variable. That is, it says that the complement of an expression leaves the expression unchanged. And the dual of an expression is an original expression. That means if we take a dual of a dual, it will be result in the same expression, right? This theorem forms the basis of finding the equivalent product of sum for a given sum of products expression and vice versa. I think हमने डिस्कस किया था टर्म ये sum of product and product of sum पहले. बताइए. What is sum of product and product of sums? सर ये नहीं करा है पहले. नहीं करा. चलो बता देते हैं. जो sum of products है ना, as the name suggests, sum of products means there are certain product terms. Let's say product term 1, product term 2, उनका sum. So this is your SOP format. जिसमें क्या होगा? There will be different product terms and they are being summed up. और POS में क्या होता है? Product of sum में उल्टा होता है. Like suppose let's take a term A plus B is one sum term. A plus B bar is another sum term. B plus C bar is another sum term. So when the different sum terms are being ANDed or product, it's referred to as a POS form. So whenever we write a Boolean expression, always you need to remember either it is in SOP form or it is in POS form. SOP means sum of products. Its example is like AB plus BC plus CA and so on. Means there are certain product terms and these product terms are being summed up. And in POS format, it's reverse. That is different. Your sum terms are being multiplied. That is their product of sum terms. Right? So we will study in detail in lectures how to compute the POS and SOP form, standard SOP form, standard POS form. But for the timing, just take it that there are two types of expressions. Either it is a POS form or it is a SOP form. Right. Then next theorem is associative laws. That is x plus y plus z can be written as y plus z plus x or z plus x plus y. It's one and same thing. It is implemented with the help of gates. You can see first x and y are being odd and then it is odd with z, or yz first odd and then odd with x. It's result in same. So there is no difference whether which two terms are being odd first and then it is odd with third term, right? So that is immaterial. Likewise, if we do ending x dot y dot z is equal to z, y dot z dot x is equal to z dot x dot y. It means that any of the two terms can be added first and then the result will be added to the third term. So it won't make any difference if which two terms are added first. So these are certain examples showing that AB plus CD plus EF is equal to CD plus AB plus EF plus is equal to EF plus AB plus CD. So any term can be taken first, no issues for that. And this form is which type of format? SOP or POS? बताओ सर. कौन सा? SOP. SOP. SOP form है सर ये. SOP form because AB is one product term which is summed with CD, which is summed with EF. So the three product terms and they are being summed up. So this is SOP form. Then take this term AB dot C dot E dot EF or C is equal to CD dot AB EF is equal to EF dot AB. These are just examples telling that what is the associative law for the product terms and for the sum terms, right? Then is the De Morgan's theorem, which is a very, very important theorem, right? This theorem states that the complement of a sum equals to the product of its complement. क्या मतलब है कि अगर मान लो आपके पास कोई sum है a plus b है, right? If you take the complement of this sum, then it is equal to the product of its complement. So a का complement dot b complement, like this. If suppose you are having a n terms which are being summed up, and if you take the complement of this,
So the De Morgan theorem says that this is equal to the product of individual complements, right? And this is a logical diagram representation of De Morgan's theorem where we are having a NOR gate. This is my NOR gate now. So for a NOR gate, I am feeding these n inputs, right? So these n inputs will output will be what? X1 plus X2 plus up to Xn whole complement. This is equal to what? If I use here, this is my bubbled AND gate. Here I am giving my X1, X2, Xn and then they are being bubbled means यहाँ पर क्या है इसका complement आ रहा है पहले तो गेट में इनपुट क्या जा रही है X1 बार, X2 बार, X3 बार, Xn बार और हो क्या रहा है उनकी एंडिंग. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा X1 बार मल्टीप्लाई विद X2 बार मल्टीप्लाई विद X3 बार मल्टीप्लाई विद सो ऑन अप टू Xn बार. Right? So this is my multi-input bubble AND gate. This is my NOR gate. So these two circuits are giving me the same output. Then in De Morgan, the second theorem says that the complement of a product equals the sum of its complements. अभी यहाँ पर पहले ऊपर क्या था complement of sum था is equal to the product of complement. अब यहाँ पर क्या है complement of a product is equal to the sum of the complement means X1 into X2 into X3 and so on up to Xn. If it is a complement of the overall product, then it is equal to the X1 bar plus X2 bar and so on. Let me show you like this. So these are the n product terms which we take the complement of these n product terms is equal to what the complements of the sums. So individually, है ना? So if we want to see it logically, this is logical. This is a NAND gate. In this NAND gate, we are having n inputs, right? So for this, let's say n inputs are there. So for n inputs, we are getting output as what? X1, this is output. X1 dot X2 dot X3 up to Xn ka whole complement. This can be achieved if I feed it to a multi-input bubble OR gate where I am feeding X1, X2, Xn. That means it is going inside X1 bar, X2 bar up to Xn bar and then being ORed up. So it gives you what? This output. So either you use this or you use this. They both are equivalent. Right? The De Morgan's theorem which you are using, it provides the mathematical verification of the equivalency of the NAND and invert OR operation and equivalency of NOR with invert AND operation. तो क्या मतलब है हमने जो दो पिक्चर देखा था दोनों में हमारे पास क्या मिला था we are getting this is what my NOR gate उसका इक्विवेलेंट सर्किट किससे बनाया बबल AND गेट में और यहाँ पर NAND गेट था इसका इक्विवेलेंट किससे बनाया into a bubble OR gate. वही चीज यहाँ पर बोल रहा है. That is, it provides a mathematical verification of the equivalency of NAND and invert OR and the equivalency of NOR with invert AND. The first theorem that is complement of a product of variables is equal to the sum of the complements of variable. So the complements of two or more ANDed variables is equivalent to the OR of the complements of the individual variables. वो चीज को और डिफाइन करके बता रहा है elaborate करके कि x dot y का bar it means you are feeding xy as input to this you are getting xy bar. This is equal to what if you feed x bar and y bar to the input of an OR gate, right? Likewise for second term, second theorem, it says that the complement of a sum of variables is equal to the product of the complements of the variable. So this is shown here. That is, if we take x plus y the whole complement, it means we are using a NOR gate. Then we can this is equal to nothing but x bar dot y bar, which is the this one. Then is the theorem 6 absorption or redundancy law. This absorption law is very, very important because it helps in reducing the Boolean expression. So like here, it's written A plus A dot B. Can you prove it is equal to A? It's written Yes, how? sir. common लेंगे तो Yes. 1 A common A common, it will become 1 plus B. So 1 that plus was B is 1 what? so 1. 8 A dot 1 1 is 1. Very good. So it's the absorption law. So this is shown here also that this is A is going to the OR gate. AB is the output for this. This is nothing but equal to A only.
So there is no need for getting this any gate for this, right? Then is a dual of this. Regarding dual के, the crux of the simplification in this theorem is say that जो आपका ये a dot a plus b है, this is a dual ना. So if you take a dot a plus b is also equal to a. तो यहाँ पर जो मेन चीज नोट करने वाली बात है वो क्या है कि if you are having a term in which one of the shorter term is available in the larger term also. ये shorter term है, देखो ना, एक term आपके पास a है, एक term आपके पास क्या है, a dot b. This term is only having one variable, this is having two variables. So this is a bigger term or larger term, right? So if this smaller term appears as it is in the larger term, then this larger term is said to be as a redundant term. Redundant का मतलब क्या होता है? Extra term है हमारे पास. So it means we do not require this. It is nothing but equal to a. So that's why it's written here. The crux of the simplification theorem is that if a smaller term appears in a larger term, then the larger term is redundant. We'll see in some more examples to make it clear. Let's say we're having this expression a plus ab bar plus a b bar c bar plus a b bar c plus c bar b a. So you can see this term is having how many, sorry, this expression is having how many terms? 1, 2, 3, 4, 5. But in all these terms, I'm having the short term a, which is available here also, here also, here also, here also. So it means the answer is A. Straightforward. If you want to prove it, उसको prove भी कर देते हैं. सर हाँ बोलो बोलो. सर इस पे कॉम्प्लीमेंट का कोई असर नहीं पड़ता है, वो बी कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट अरे वगैरह? भाई वो फर्क तब पड़ता कॉम्प्लीमेंट अगर ए के ऊपर होता. जो हमारी शॉर्ट टर्म है वो ए है ना. जी. तो अगर शॉर्ट टर्म जो है, अगर वही टर्म हमारी हर एक जगह, मान लो ए बार होता सपोज कोई शॉर्ट टर्म और हर एक टर्म में ए बार होता तो ए बार हमारा आंसर आ जाता. तो वी हैव टू लुक इनटू द शॉर्टर टर्म. वो शॉर्ट टर्म अगर दूसरे टर्म में आ रही है तो वो टर्म हमारी रिडंडेंट हो जाती है. It ओके may सर. not be coming in all the terms. It may come in one term, two term, three terms. तो जिस टर्म में आ रहा है वो टर्म क्या होगी? रिडंडेंट होगी हमारे पास. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है. हाँ, तो अब मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि जो हमने कहा है इक्वल टू ए कैसे होगा. सो यहाँ पर हमने क्या किया देखो पहले. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. हाँ देखो फर्स्ट यहाँ पे ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी बार. सो देन this ab bar c, this term is gone. Why? Because this term is already there in ab bar. ab bar is part of this. So we have just compared these two. So ab bar c bar. तो इसमें ab bar था, तो we take in these two terms, suppose ab bar common, so it will coming out to what? ab bar into 1 plus c bar. It is nothing but ab bar. Then we have taken ab bar with ab bar c next term. So again ab bar take outside 1 plus c. Then we left with what? This term. So a plus ab bar will nothing but equal to a, and then a plus c bar b a ends it a only. Right? Let's take one more example. Suppose we are having this term a bar plus b plus c bar into a bar plus b into a bar plus b plus c. Now here the shorter term is what? A bar plus b. So just focus it in this expression. This is a form of what? POS form. So this expression is in the form of POS, product of sum, and the shorter term is what? This term, a bar plus b. This a bar plus b is in this term also, in this term also. It means for this the answer is what? A bar plus b. Let's prove it also. So for these two terms, the common will be a bar plus b, so it will be a bar plus b. Then we have left with what? A bar plus b into a bar plus b plus c. Again from these two terms, a bar plus b is common. So that's the answer. So it means आपको फोकस कहाँ करना है कि जब भी आपने बूलियन फंक्शन को आपको गिवन होगा आइदर इन एसओबी फॉर्म और इन पीओएस फॉर्म, आपने ये चेक करना है पहले कि जो मेरा स्मॉलेस्ट टर्म है, इज इट अपीयरिंग इन एनी अदर टर्म एज इट इज. ये नहीं कि एक में ए आया उधर ए बार आ रहा हो. नो, इट वॉन्ट वर्क. यू हैव टू फोकस दैट कि इफ द सेम लिटरल जो आपका एक टर्म में आ रहा है, जो शॉर्ट टर्म थी, वही शॉर्ट टर्म पूरी की पूरी आ रही है मेरी दूसरी टर्म में, तो वो दूसरी टर्म जो सी लार्जर टर्म है वो क्या होगी? रिडंडेंट हो जाएगी. उसको छोड़ दो. So this helps in minimizing the circuit.
right? Now let's talk about some more additional theorems regarding Boolean algebra, which helps us to minimize the expressions, right? In a Boolean expression, if the variable appears in normal form का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉर्म. जैसे मैंने कहा a, b, c, और दूसरी फॉर्म क्या थी? कॉम्प्लीमेंट फॉर्म मींस a bar, b bar और c bar. So here we're saying in a Boolean expression, if a variable appears in normal form in one term and in the complement form in the second term, then that variable is redundant and can be eliminated. Right? Now to understand this concept, let's take the theorem here. If xy plus xy bar, it means what? कि यहाँ पर आपके पास क्या है? One term is there y, other term is complement, right? So y को दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर. So this is going to be having what? Y plus y bar as 1, so we'll get only x. Likewise, if suppose I am having x plus y into x plus y bar, so x is common, other term is in one side is true form, other time is complement form. So answer will be what? The remaining term x only. So that's why it's written that if a variable appears in normal form in one term and in the complement form in the second term, then that variable is redundant and can be eliminated. So here the term y is redundant, so that is eliminated from the expression. So we left with only xx. Let's take this example to understand this more. Suppose we are having these terms. Let me count the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now in all these 8 terms, can you find anything common? Sir, अपना A. A is common. A is common in all the 8 terms, isn't it? Yes, sir. Now what else? बस सर यही है. यही कॉमन है. अब मुझे चेक करना है बी सी और डी के बिहेवियर को. फर्स्ट टर्म में बी सी डी क्या है? तीनों में कॉम्प्लीमेंट है. तो इट मींस तीनों Complement है, 0 sir. है. यस सर. हाँ. नेक्स्ट में क्या है? बी बार सी बार डी 0 0 1. 1 फिर नेक्स्ट में क्या है? बी बार सी डी बार 0 1 0 0. 1 0 देन बी बार सी डी 1 0 0 0. 1 Then हाँ. B C bar D. Then B C D bar. Then B C D. It means for 3-bit, all the combinations are there, isn't it? Yes, sir. So Yes, that's why sir. it's written that in this expression, variable B, C, and D are present in all the possible combinations, and the variable A is common factor in all 8 product terms. So with this application of theorem 7a, the expression will be what? Only A. Yes, sir. अब आपने कैसे इसको मैंने लिखा ए? बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर कौन सा टर्म था? सिर्फ एक टर्म था जो एक में ट्रू था, एक में कॉम्प्लीमेंट था. इट मींस दिस वेरिएबल कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, आइदर ट्रू और कॉम्प्लीमेंट, बट हियर देयर आर 3 वेरिएबल्स बी सी एंड डी, so they can take 8 combinations. So if all that combinations are there, it means that they are said to be as a redundant terms or redundant variables rather. So the answer will be only A. क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, Any sir. doubt? No, sir. Okay. No, sir. So similarly, let's take one more example. Let me erase it first. Let's say expression A plus B bar plus C bar dot A plus B bar plus C dot A plus B plus C bar dot A bar plus B plus C. Now we want to reduce this. In this expression, this is of which form? SOP or POS? POS. POS, first thing. So this is POS form, and how many terms are there? 4 terms. How many variables are there? 3 variables, A, B and C. See, Yes, sir. जब भी हम variables count करेंगे, we will not say कि B bar B है, C bar B है, A bar B है. No. Either a variable is in true form or in complement form, it is taken as 1 only. Right? So there are 3 variables, and I can see in this expression, which is A, B and C. Now, from this expression, A is common in all the terms. Here is also A, here A, here A, here A. And regarding B and C, B bar, C bar, B bar, C, B, C bar, this is BC. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
So again, B and C, which are the two digits, they are taken all the four possible combinations. So it means that this B and C can be eliminated from the expression. So the answer will be what? Only A. Got it? Yes, sir. सर Okay. हाँ बोलो. सर एक बार दोबारा से बता दो सर. हाँ देखो, इसमें हमने क्या बताया, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये चार टर्म्स है, इन चार टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ये हर एक में आ रहा है चार टर्म्स में, Yes, ठीक sir. है. अब जो बी और सी हमारे पास है, वो कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स है. दो वेरिएबल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? चार बनते हैं, है ना. 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट. एंड Yes, all sir. these four combinations are covered in all these four terms. Hmm. It means that Yes. this B and C are said to be as redundant terms, so they can be removed from the expression. Okay, sir. So it left is nothing but only A, Okay, sir. right? सर अब ये अगर एक भी कॉम्बिनेशन नहीं होता तो फिर ये तब नहीं कर थ्योरम सकते. वो करेगा. ना, तब कंप्लीट नहीं करेंगे. देखो आपको नीचे यहाँ पे देखो करके दिखा रखा है ना कि मान लो आपके ये फर्स्ट टू टर्म्स में होता, अगले में ना होता, तो फर्स्ट टू टर्म्स का शॉर्ट करना था, उसका आना था आपको A प्लस बी बार, राइट. फिर नेक्स्ट टर्म देखना था, कुछ कॉमन आता है ठीक है, नहीं तो नहीं करना. जरूरी नहीं है कि ये आपको हर एक में मिलेगा ऐसा. ये तो मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल केस बता रहा हूँ कि आपका जो आइडियल सिनेरियोस में मान लो आपको सारी कॉम्बिनेशन मिलेगी, तो आपने इसको निकाल देना. लेकिन अगर सारे के सारे नहीं मिले, यू हैव टू कीप दैट आल्सो. तो उस केस में हम क्या करेंगे, विल टेक सम एग्जांपल आल्सो कि कुछ टर्म्स जो सी जहां पर कॉमन निकलेगा वो निकालेंगे, जो नहीं निकलेगा उसको रखेंगे एज इट इज, राइट. The next theorem is theorem 8, that is transposition theorem. This theorem is applied to any sum of product or product of sum expression having two terms, provided that a given variable in one term has its complement in the other. For example, यहाँ पर आपके पास क्या है, xy plus x bar z. तो यहाँ पर देखो, इसमें दोनों में क्या फर्क है, जो आपकी लेफ्ट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या है, x इस तरफ है, दूसरे में टर्म उसमें क्या x बार आ रहा है. तो वो हम बातें कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपका टर्म एसओबी फॉर्म में या पीएस फॉर्म में है, तो आपका एक जो वेरिएबल है एक टर्म में, वो दूसरे में उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो यही यहाँ पर हो रहा है. यहाँ पर और इस साइड पे क्या है, x प्लस जेड डॉट वाई प्लस एक्स बार. तो यहाँ पर भी x और x बार चेंज हो रहे हैं. तो इसका ड्यूअल क्या होगा? अच्छा, ये आपको क्लियर होगा, x प्लस एक्स वाई प्लस जी कैसे लिखा है हमने, कुछ का प्रूफ बताऊं? सर एक बार रिपीट कर देंगे, ये नेटेशन जो का आपका पंगा लिखा है हो हमने, गया. कोई बात नहीं, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, इसको हमने लिखा है एक्स प्लस जेड इंटू वाई प्लस एक्स बार. ये हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई टर्म, जैसे यहाँ पर ये एक्स आ रही है फर्स्ट में, दूसरे में उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, राइट. इसी तरह यहाँ पर एक्स आ रहा है, उसमें एक्स आ रहा है, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन फॉर्म में थ्योरम लिख सकते हैं, हाँ ये पता है. ना. अब इसका ड्यूअल लिखूंगा तो क्या आएगा? x plus y dot x वेरी bar गुड. एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई. Now let's take an example. Suppose you're given a bar b plus a b bar. ये हमारा क्या होता है, एक्सोलेट होता है ना, जो हमने किया भी था लैब में भी किया हुआ. तो दिस इज योर a bar b plus a b bar. This is written as a plus b into a bar plus b bar. So now similarly ab plus a bar b bar is written as a plus b bar dot a bar plus b. Then comes the equivalent and the complement of Boolean functions expressions. So two given Boolean expressions are said to be equivalent if one of them equals 1 only when the other equals 1, and also one equals 0 only when other equals 0. It means जब हम कहते थे पहले में बनाया था कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, तो both the circuits are equivalent only if, अगर पहले में जहां 1 आ रहा है वहां पर आउटपुट 1 आना चाहिए, जहां पर 0 आ रहा है वहां पर 0 आना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट होंगे. मींस उसका ऑपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए. Similarly, two given expressions are complement of each other if one equals 1 only when other equals 0 and vice versa. कहने का मतलब क्या है कि जब हम टूथ से बनाते हैं ना,
तो हम कहते हैं कि मान लो इस कॉम्बिनेशन में हमारा 0 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट में सेम आ रहा है ट्रुथ टेबल, इट मींस दैट इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि दो एक्सप्रेशन जो सी है वो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे मैंने कहा एंड और नैंड है, दे आर कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो अगर जहां पर 1 आ रहा है वहां पर 0 आएगा, जहां पर 0 आ रहा है वहां पर 1 आएगा, राइट? So complement of given Boolean expression is obtained by complementing each literal and changing to all dots to plus and plus to dot and all zeros to 1 and all ones to zeros. तो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस जिसमें हम क्या करेंगे, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और बोलेंगे कि कंप्यूट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस Boolean expression. Like here in example, suppose you're given a bar b plus a b bar. So अब आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकालेंगे? This is given to you a bar b plus a b bar. तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दो ऊपर से, है ना? अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इनके बीच में प्लस हो रहा है, तो प्लस तो किस में चेंज हो जाएगा आपका? डॉट डॉट में। डॉट अब यहाँ पर डॉट था इनके बीच में, यस सर तो यहाँ पर डॉट में क्या चेंज होगा? प्लस हो जाएगा, है ना? ये वाला डॉट भी अलग से प्लस बन जाएगा। और जो ये वेरिएबल से ये ए बार था, ये बी था, तो ये ए बार का बार हो जाएगा, ये बी का बार हो जाएगा, और इसमें ए का बार हो गया, यहाँ पर बी बार का बार। इट मींस इंडिविजुअल टर्म्स आर बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड। अगर ट्रू फॉर्म में तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड डबल कॉम्प्लीमेंट यू ऑल नो इज इक्वल टू सेम नंबर ए, सो इट विल बी ए प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी। वो यहां आ रहा है हमारे पास। क्लियर? एनी डाउट? Similarly, try to compute its complement. आपको गिवन है a plus b डॉट a बार प्लस b बार का पूरा कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले फोकस क्या करो, डॉट को प्लस करना है, प्लस को डॉट करना है। फिर जो ट्रू फॉर्म में वो कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट ट्रू कर दो। तो ये डॉट है हमारे पास, डॉट का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, है ना? और यहाँ पर टर्म्स क्या आएंगी? ये प्लस का डॉट बन गया बीच में, ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी बार बी, सबका आ बी गया ये? सिर्फ ए बी आएगा। हाँ। बिल्कुल क्लियर है ये कंसेप्ट? यस सर यस सर। Okay. So Boolean expression yields 1 when odd with its complement. क्या मतलब है कि मान लो एक कोई Boolean expression था, a b था, सपोज करो, उसको आपने और किया with a b होल कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है और गेट में मैं एक वेरिएबल को अगर 0 फॉर्म में होगा या उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 आएगा, तो 0 is always 1. Likewise, a Boolean expression yields 0 when ended with its complement. तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी एक्सप्रेशन को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब एंड करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा हमेशा। इज दिस पॉइंट क्लियर कि 0 क्यों आया और 1 क्यों आया? 0 यस इसलिए सर, समझ हमने गए। जब एंड गेट यूज किया, एंड गेट में अगर हमने मान लो यहाँ एक्सप्रेशन दिया ए बी सी, दूसरा दिया ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, है ना? तो अगर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कॉम्प्लीमेंट में जब ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करेंगे, जैसे मान लो एबीसी है, ये एबीसी का बार है, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा। तो इन एनी ऑफ द केस एक भी 1 हो गया तो आपकी ऑर्गेट की आउटपुट हाई हो जाती है, राइट? यस सर The next theorem is, if a Boolean variable is ANDed with a term comprising of the complement of this variable and another variable, then the complement variable is redundant. क्या मतलब है इसका? देखो जरा कि suppose you are having a dot a bar plus b.
तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ अ बुलियन वेरिएबल इज एंडेड a एंडेड विद a बार प्लस b, राइट। अब जब a को हम a बार प्लस b से एंड कर रहे हैं, इस a बार प्लस b में क्या टर्म है? इट कंपेरिजन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वेरिएबल। तो जिससे हम एंड कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर है, राइट। तो क्या हो गया? then the complementary variable is redundant. It means when we multiply a dot with a bar plus b, तो ये a bar redundant है बीच में हमारे पास, तो its answer will be only a dot b। क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि जब कहा था कि किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कॉम्प्लीमेंट से जब हम एंड करते हैं तो आउटपुट क्या आती है? बताइए। 0 आती है। 0। तो इसलिए हमने कहा कि जब भी मैं मान लो किसी भी बूलियन वेरिएबल को एंड कर रहा हूं विद अ टर्म व्हिच कंटेन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वेरिएबल, देन दैट वेरिएबल इज रिडंडेंट। यस सर। राइट। तो आपको यहाँ पर क्या आ गया? a प्लस a बार b इज नथिंग बट इक्वल टू ab, क्योंकि a बार आपको 0 हो गया तो सिर्फ ab आ गया आपके पास। अब इसका ड्यूअल क्या होगा बताओ? सर a प्लस b A plus B bar dot B। इज इक्वल टू A plus B। हाँ रेक्टिफाई। क्लियर? यस सर। अब सेम चीज को हमने एक्सप्रेशन से उसमें सर्किट बताया, तो आपका ये सर्किट था पहले, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर योर a प्लस a बार इंटू b। इसको रिड्यूस कर दिया तो आपको क्या बना? a प्लस b। सो यू हैव टू जस्ट focus here that कि when a particular Boolean expression is minimized or is reduced using these theorems, then it helps in the reduction of the hardware requirement, and that to cost and that to size also, right? तो आप देखो आपको ऊपर वाले सर्किट में सेम चीज मिल रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ 3 गेट्स, वन एंड लगाया हुआ है आपने, और लगाया हुआ है, नॉट लगाया हुआ है, लेकिन ये चीज किससे रिप्लेस कर दी? विद सिंपल और गेट। सर इसमें 9th B में फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में कैसे गए? फर्स्ट से सेकंड पे कैसे गए? यस सर। देखो इसमें रुको, ये हमारे पास क्या है? a प्लस a बार डॉट b। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a x प्लस yz? क्या फॉर्मूला होगा हमारा बताओ? इफ x प्लस yz इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस y इनटू Y plus x प्लस z। ओके सर समझ आ गया। यहाँ पर a प्लस a बार इनटू a प्लस b। a प्लस a बार इज 1 एंड इट इज इक्वल टू a प्लस b, राइट? अच्छा अब ये सामने देखो हमने ट्रूथ टेबल बना रखा है आपके लिए, ठीक है? तो ये क्या किया हमने? रिटन दैट दिस कैन बी प्रूव्ड विद द यूजिंग अ ट्रूथ टेबल अप्रोच आल्सो, कि आपकी a और b मान लो इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन लिख लिए इसके हमने पहले, फिर देखा a बार b क्या आ रहा है, फिर a प्लस a बार b क्या आ रहा है, फिर a प्लस b क्या आ रहा है। सो वी कैन सी दिस लास्ट 2 कॉलम्स आर टोटली इक्वल, और वो होगा भी क्योंकि हमने उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। क्लियर हो गया ट्रूथ टेबल आपको सबको? कोई डाउट इसके अंदर ट्रूथ टेबल में किसी को बताओ? सर एक बार ट्रूथ टेबल वापस बताना। हाँ ट्रूथ टेबल देखो क्या है बच्चे, इसमें हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन लिखे हमने कहा कि Yes, पहले sir. आपने लिखा था a प्लस a बार b। a प्लस a बार b क्या है? ये है आपके पास, है ना? यस सर। तो a प्लस a बार b कैसे निकाला मैंने? पहले मैंने a b लिखा, a बार b क्या होगा? a का नॉट किया, उसको b से मल्टीप्लाई किया, है ना? तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 आया। 1 डॉट 0 इज 0, 1 डॉट 1 इज 1, 0 डॉट 0 is 0, 0 dot 1 is 0. So only this is the output for this, है ना? अब हमने क्या किया? इस a बार b को किसमें ऐड कर दिया? a में, क्योंकि आपको गिवन एक्सप्रेशन था a प्लस a बार b, तो हमने दोनों को ऐड किया। अब इसको फोकस ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, 0 प्लस 0, 0 और भी 0, 0 आ गया, 0 1 का 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया। अब सेम चीज हमने कहा रिड्यूस किया a प्लस b से आ गया। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो इसको बोलते हैं हम ट्रूथ टेबल अप्रोच। अच्छा और थ्योरम देखो, when a smaller term appears in larger term except for one of the variable, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, appearing as a complement in the larger term, then the complement variable is redundant। कि मान लो आपका जो स्मॉलर टर्म है वो लार्जर टर्म में आ रही है एक्सेप्ट
फॉर वन ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं आ रहा मान लो, बाकी सबको आ रहा है, appearing as a complement in the larger term, then the complementary variable is redundant. For example, xy plus xy bar z. अब यहाँ पर तो लेफ्ट में क्या था, xy था हमारे पास टर्म, है ना, जो हमने पहले सीखा था कि हमने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म है और ये लार्जर टर्म है आपके पास, तो यहाँ पर xy है लेकिन यहाँ पर xy बार है, इट इज नॉट सिमिलर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसमें कि when a smaller term appears in a larger term except for one of the variables appearing as a complement, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, वो y complement, y complement is in the larger term, then the complementary variable is redundant. तो आपका जो complementary variable है वो extra है, उसको निकाल दो, तो ये निकाल दो, हमारे पास क्या बन गया, xy plus xz। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब इसका ड्यूल क्या होगा? सर y को निकाल दिया हमने। बिल्कुल निकाल दिया। ओके प्रूफ करेंगे ऐसा? यस सर। चलो करते हैं। आपके पास था xy प्लस xy बार z, है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ xy प्लस y बार बार xz, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो x सर। कॉमन ले लो, y प्लस y बार z, हाँ ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा x प्लस y z का, y plus y y प्लस y बार y प्लस प्लस z, y प्लस z, यस सर। ये क्या हो गया, 1 तो क्या बच गया, x xy इंटू y प्लस z, y प्लस z, यस सर। xy प्लस xz। ओके सर ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो जितनी थ्योरम्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन आपको खुद सोचना है कि मैंने किस टर्म्स को पहले उठाना है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं है डिस्कस के अंदर कि मान लो दो बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया और दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे, लेकिन दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने निकाला इसका आंसर एक्स वाई प्लस एक्स जेड, आपने निकाला मान लो कोई डिफरेंट टर्म्स था, लेकिन हर एक के अंदर दो टर्म्स थी यहाँ पर भी, और दोनों दो वेरिएबल्स थे, ट्रू फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो दोनों ठीक होंगे, प्रोवाइड आपने सब कुछ स्टेप सीख किए हैं। कोई स्टेप गलत किया तो डेफिनेटली गलत होगा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा, आंसर इज नॉट दैट कि एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। हम चेक करते हैं आंसर के अंदर कि व्हेनेवर फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, वी हैव टू लुक इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन टर्म। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आ रहा है a प्लस बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, 1 2 3, और एक टर्म वन वेरिएबल की है, दो टर्म्स दो वेरिएबल्स की है। अब मान लो दूसरे बच्चे का आंसर आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस डी, तो ये भी ठीक हो सकता है, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स ही है, मींस दिस बोथ दिस आउटपुट्स आर गिविंग मी द सेम रिजल्ट इन सेम मिनिमाइजेशन। लेकिन मान लो एक बच्चे का ऐसा आ रहा है ए प्लस बी सी प्लस डी, और अगर ये ठीक है तो इन दोनों का आंसर गलत हो जाएंगे। Why? Because this is more minimized. तो आपको यहाँ पर Okay, फोकस sir. करना है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो इतना मिनिमम आए कि उसके फर्दर रिडक्शन पॉसिबल ही ना हो। और वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? बाय कंपेयरिंग कि कितनी टर्म्स आ रही है आपकी और उस टर्म्स में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, चाहे वो ट्रू फॉर्म में है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट। अभी हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जब आगे करेंगे उसका रिडक्शन। 3 पॉइंट क्लियर होगा सबको, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। और सर Okay, let me erase it first. Now, just try to simplify this expression. A plus B bar dot A bar plus B bar plus C dot A bar plus B bar plus D. करो ट्राई सिंपलीफाई करने की, देखें कितना आया आपको। Okay, let me show you. इसमें देखो ध्यान से, जो सर्कल किया हुआ है ए बार, हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 टर्म्स थी उसमें क्या है, देखो पहली टर्म में ए प्लस बी बार है, अगली टर्म में क्या, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो बी बार तो सेम है टर्म, छोटा टर्म का, लेकिन जो ए है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहा है ना,
तो हमने क्या सीखा था अभी थ्योरम में कि अगर कोई टर्म ऐसे कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, दूसरा टर्म ऐसी चीज आ रही है, तो उस टर्म को रिमूव कर दो। इससे पहले देखा था ना हमने अभी, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब Yes, क्या बच sir. गया? बी बार प्लस सी। ये स्टेप क्लियर हो पहले किसी को? डाउट बताओ मुझे। Yes, sir. सर ये क्लियर है। हाँ, सब अब आगे clear है। करो। अब आगे देखो, इसमें क्या है? ए बार, अब यहाँ पर बी बार प्लस डी, यहाँ पर इसमें ये से बी एक बार और निकाल दी। हाँ, तो ए बार निकाल दिया। अब क्या बच गया? बी बार प्लस डी। तो ये हमारा फर्दर क्या होगा? दिस इज द मिनिमाइज रिजल्ट। अब यहाँ पर एक चीज करना, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पीओएस फॉर्म, तो आपने पीओएस फॉर्म में आंसर देना, ये नहीं कि उसको ब्रैकेट खोलो लग जाओ। राइट, नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, जस्ट उसको लिखना है बस, डॉट मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो अगर पीओएस Okay, में है sir. तो रिडक्शन भी पीओएस में ही होगी, अगर एसओपी में है तो एसओपी में ही हमारी रिडक्शन होगी। राइट, देन नेक्स्ट इज योर थ्योरम नंबर 11, दैट इज कंसेंसस थ्योरम। That is, if in a given Boolean expression, we can identify two terms with one having a variable and the other having its complement, then the term that is found by the product of the remaining variables in the two terms is redundant. So in case of your SOP form, like in this case, xy plus x bar z plus yz, that is written as xy plus x bar z. क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखो यहाँ से कि हमारे पास, एक मिनट, let me take the- वो क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले टू टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी? वन हैविंग अ वेरिएबल एंड अदर हैविंग इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आपके एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, है ना? अब इस तीन टर्म्स में देखो, एक्स वाई, एक्स बार जेड, वाई जेड। राइट, तो यहां पर क्या हुआ कि अब एक तरफ आपका एक्स है, एक तरफ आपका एक्स बार है। देन दे आर सेइंग then the term that is found by the product of the remaining variables in the two terms is redundant. It means यहां पर कौन सी टर्म्स होगी? ये वाली। तो यहां पर हमने दो टर्म्स कौन सी देखी जिसमें एक एक्स था, एक एक्स बार था, और रिमेनिंग टर्म कौन सी होगी? वो जिसके अंदर एक्स ना एक्स है ना एक्स बार है, कुछ भी नहीं है, तो दैट टर्म इज एक्टिंग एज अ रिडंडेंट टर्म। तो दैट इज नथिंग बट एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। देन द ड्यूअल ऑफ दिस, ड्यूअल क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस जेड डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड। Now let's take this example. ABC plus A bar CD plus BCD plus B bar CD plus ACD. So here, let's try to minimize it. So he's saying, considering the first two terms of the expression, BCD becomes redundant. तो यहाँ पर first two terms में क्या देखो? ABC, A bar CD. Then अब यहाँ पर क्या है? First two terms में A और A bar आ रहा है ना? थर्ड टर्म में ये BCD नहीं आ रहा, तो BCD इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? रिडंडेंट होगी। Then it left is what? ABC plus A bar CD plus B bar CD plus ACD. Now, considering the first and third terms, in first and third terms क्या है? B और B आ रहा है, और इसमें B आ ही नहीं रहा, तो ACD becomes redundant. तो what we left with that? ABC plus A bar CD plus B bar CD. Is this clear? Yes, sir. सर So इसे let's take प्रूव some कर सकते examples. हैं हाँ, थ्योरम बोलो 11 को? क्या कह रहे हो? इसे प्रूव कर सकते हैं थ्योरम 11 को? करो प्रूव, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? Just try to take the first two terms. देखो कुछ कोई फॉर्मूला लगाओ इसमें, जब अपने पढ़ा है, जो आपका लास्ट टू टर्म्स में से हमने इसमें क्या निकाला? एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर आपको सिंपलेस्ट करना है तो क्या करो? ट्रूथ टेबल बना लो इसका। यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल अप्रोच, और यू कैन अप्लाई द बूलियन जो हमने सीखा अभी तक। करो ट्राई, शाबाश।
सी जितनी भी हमें थ्योरम्स पढ़ी हैं आपको कंसेंसस थ्योरम, ये आपको सारी एडिशनल थ्योरम्स बता रहे हैं टू मेक इट एज शॉर्टकट। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको वो थ्योरम जो बेसिक आपने बताई है थ्योरम आपको वो लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब करें इसकी एग्जांपल्स कुछ और। सर एक बार इसको प्रूफ करके दे दीजिए अब। हाँ करो प्रूफ, मैं तो कह रहा हूँ आपको ट्राई करो, जस्ट ट्राई टू प्रूव दिस, करो शाबाश। x प्लस वाई, इसको कह रहे हो ऊपर कह रहे हो, किसको बोल रहे हो, ए को बी को? ए को। ए को कह रहे हो, ओके। एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। अब क्या इन दोनों टर्म से कुछ निकलता है? एक में x है, एक में x बार है। तो क्या बनेगा इसका? कुछ बन सकता है? सी मैंने आपको बताया जितने भी आपको मैंने लॉस सिखाए हैं, जितने भी थ्योरम सिखाई हैं, कोई भी थ्योरम कहीं पर भी ला सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे निकलेगा, इट मे कंटेन्स टू टर्म्स विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर मैं देता हूँ कि अगर एक एक्स बार है और एक एक्स है तो क्या करते हैं हम, बताओ? ये ऊपर था ना, देखो ऊपर लिखा हुआ एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार जेड। यहाँ पर हमने कहा था कि एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई बार जेड है, ये डिफरेंट है। वाई बार को मतलब एग्जीक्यूट कर देते हैं। हाँ बट नहीं, पर ये वाला केस में तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर तो दोनों चीज सेम आ रही है एक्स और वाई। यहाँ पर क्या है, ओके। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स बार जेड है, ये डिफरेंट है। तो अगर मैं इसमें मान लो दूसरा लगाता हूँ एक्स, आई कैन राइट इट एज, लेट मी राइट, आई कैन राइट एक्स वाई प्लस एक्स बार। हाँ बोलो सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, ओके। चलो Yes, आप प्रूफ करना, इसको ट्राई करना, विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम यहीं से। लेट मी टेक यू टेनिस नाउ। सर